Today we are going to see an application of the method of superposition. Superposition we discussed last time. Superposition क्या चीज होती है ये हमें पता है और उसकी applications obviously हमने नहीं देखी हुई. Still we are going to see them. Okay. So let me bring a diagram to explain that. Okay, there's some problem. I'll just start here. ये देखिए superposition method for statically indeterminate problems. ये हम कैसे करेंगे? Let me give one example and then I'll move on and then we can do some problems. असल में the problems will demonstrate it correctly, but शुरू में हम एक दफ़ा एक छोटी सी थ्योरी पढ़ लें ताकि उसका हमें एक आइडिया मिल जाए. Let us take this example which we have studied earlier also, but not in this context. ये देखिए, there is a force P here. Recall, this is a statical indeterminate problem. We solved it. I'll just go through it just for a revision. Okay, we said in this segment there will be tension as a result of this force P. In this section there will be compression. Okay, so we said कि हमें ये तो पता है अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूँ इसका तो this P will be here. Let's call it A. This is called point B. This is RB. This is RA. यहाँ पर तो बात ठीक हो गई. इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या कहती है? RA plus RB minus P is equal to 0. This is the equilibrium equation, or in other words, RA plus RB is equal to P. This is the equilibrium equation. Okay. Now we have two unknowns, RA and RB. P is given. P is given. RA, RB unknowns we want to find, because if you don't find RA and RB, we won't be able to find stresses, right? So how to find that? We know that if this is point C, then we can say that displacement of AC, which will be tension, okay, plus displacement of CB, which will be compression, is equal to 0. This was our compatibility. और फिर आपको याद है कि वो what is RAC? Yeah, what is delta AC? RALAC over AAC, which is the same, or EAC. Yeah, plus अब इस प्लस के साथ यहाँ माइनस आएगा. Why? Because recall this RB, this is through a minus, has to be minus. ठीक हो गया, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. RB LCB
ACB ECB। ठीक हो गया ना, ये आपको अच्छी तरह याद है। ओके, नाउ this is equal to 0, और ये you have another equation in terms of RA something RA minus something RB, because the other numbers are LA, these are known, so you get two equations to unknown, you solve it. Okay, now superposition, we can do the same thing, exact same thing by superposition. Let's see how. We say you have this problem in mind, it is clear to you, revise भी हो गया, इस तरह करते थे, ठीक है ना। There is an alternate way, और वो alternate way क्या है, ये देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। Not that it is going to give you a different answer, obviously not, give you the same answer, but now let's see this problem. This was the original problem. याद कीजिए, we said superposition method can be applied in certain conditions, और वो certain conditions हमारी क्या थी, बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन ना हो, मटेरियल नॉनलिनियरिटी ना हो, वो सारा कुछ हम डील कर चुके हैं, हमारे ये सारे प्रॉब्लम उसी में लाई करते हैं, so we can apply. How? Let's see. Let's divide this problem into two parts. One part, forget about this wall B या floor B, whatever it is. Exaggerated figure बना रहा हूँ. Obviously, this kind of loading won't be, this kind of deformation won't be there. Let's suppose as a result of load P, this extends some distance. Okay. Now, the real system is not like this. Real system, it cannot extend. Okay. But what we say is, then we say we divide this loading into two parts. One as a result of load P applied, the other RB. Now this will be P and this will be, you understand? Loading दो तरह की है अगर देखा जाए. One is load P, the other is the ground which is applying an upward force, right? Real world में तो ऐसे ही है, असल प्रॉब्लम तो वही है, ठीक है ना। हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, हमने इसको बजाय इसके कि हम दोनों को इकट्ठे लेते, जैसे कि यहाँ लिया, इधर हमने दोनों को एक simultaneously लिया था, not alternatively. Here we are taking first P only, forget about the wall, no wall here, but actually the wall is there obviously. So if the wall is there, then you will obviously then apply this ultimately, और जब ये wall apply लोड करेगी तो वापस वहीं पर आ जाएगा, ठीक हो गया ना। अगर वापस वहीं पर आ जाएगा तो then you can apply the equation again, ठीक है। अब इसकी equation क्या बनेगी, इसकी equation बनेगी, this is a new interface for me, sorry, ये अब मुझे समझ आ गई आहिस्ता आहिस्ता। ओके, चलिए अब इसकी compatibility तो इसकी भी यही है। In the first case, this deformation, let's call it deformation for load P. Okay. In the second case, this deformation, यहाँ तक पहुँच गया था, यहाँ तक पहुँच गया था, तो let's call this RB, रिएक्शन B. ओके, आपके पास ये आ गई, ठीक हो गया। तो अगर आपके पास ये आ गया तो नाउ यू कैन राइट अनदर इक्वेशन फॉर कंपैटिबिलिटी, और कंपैटिबिलिटी अभी भी वही है। अगर आप देखा जाए, कंपैटिबिलिटी इज दिस प्लस दिस, ये मिला के 0 बन जाते हैं ना, ठीक है ना, देयर इज नो इशू देयर। बट नाउ the equation will be slightly different.
because in this case this delta p is what pl over a याद करें p तो है बट ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि इसमें जो एक्सटेंशन हो रही है वो सिर्फ इट्स ओनली टेकिंग प्लेस इन दिस। ये जो रेड में मैं रीजन शो कर रहा हूँ इट हैज नथिंग टू डू विद एक्सटेंशन क्योंकि वो सिंपली रिजिड बॉडी मोशन हो जाएगा, उसको रोकने वाली कोई चीज नहीं है। दूसरे लफ्जों में यू कैन लुक एट इट लाइक दिस, ये p का जो पेयर है ना, p और p का जो पेयर है इनके दरमियान एक्सटेंशन होनी है सिर्फ, इसके आगे तो पेयर नहीं है ना, तो देयर इज नो पेयर, देयर इज नो चेंज ऑफ लेंथ। सो इसमें जब मैं लेंथ की बात करता हूं दैट विल बी लेंथ AC ओवर AE, ठीक है। ये तो हो गया पहला वाला पार्ट 1। पार्ट 2 जाहिर है प्लस और फिर माइनस साइन के साथ आएगा, RB इज नेगेटिव, ठीक है, वो हमें पहले भी पता है। अब इस केस में RB मल्टीप्लाइड बाय नाउ द होल लेंथ, ये जो वॉल यस फ्लोर है टू बी कंसाइज, फ्लोर अफेक्ट्स द होल लेंथ ऑफ द बॉडी नॉट जस्ट AC पोर्शन, ठीक है ना, बिकॉज इसमें पेयर देखें ना, पेयर के अंदर जितना भी है, सो दैट विल बी लेंथ AB over AE। You understand this? Now जाहिर है उसकी कंपैटिबिलिटी जो थी ऊपर वाले की, मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाकी मैं थोड़ा तेज चला जाऊंगा। ऊपर वाले की जो कंपैटिबिलिटी थी उसमें आप नोट करें एक LAC पार्ट था और एक CB पार्ट था, ठीक है ना, तो इसमें RA और RB थे। जाहिर है ये राइट हैंड साइड 0 है इन बोथ केसेस, बट here you have right hand side again 0, but here you have in one case this is a whole length, this is the whole length and this is not the whole length, just partial length, right? और यहाँ P है और यहाँ RB, तो इस तरह आप सॉल्व करेंगे तो जाहिर है RB की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ P आ जाएगी ना। यू हैव अनदर इक्वेशन नाउ, एक इक्वेशन और चाहिए थी, यू हैव गॉट इट। RB इधर से कैलकुलेट कर लेंगे और वो RA plus RB is equal to P, वो तो आपको पहले भी पता था, put that back, you can solve it। तो moral of the story I'll just give in one line, this is an alternate method, it is called superposition method। superposition क्यों? आप बारी बारी लगा रहे हैं, पहले एक फोर्स को लगाते हैं फिर दूसरे को लगाते हैं फिर कंपैटिबिलिटी लगा रहे हैं, ठीक है। it will give you the same result and it depends on the question, you can solve all questions by both methods। पहली बात तो कुछ क्वेश्चन में ये जरा सूट करता है, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ आपको क्लियर हो जाएगा कि किस मेथड को कैसे, किस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस बिफोर आई मूव ऑन टू रियल प्रॉब्लम? ये तो मैंने वही प्रॉब्लम आपको करा दिया ना ऑलमोस्ट, जिस तरह पहले किया था, ठीक है ना, ऑलमोस्ट करा दिया आपको। सर जी पूछें। सर ये जो हमने सुपरपोजिशन में इनको दो हिस्सों में तकसीम किया है, तो इनमें से एक हिस्सा क्या ऐसा नहीं करेंगे, मतलब दो छोटे छोटे हिस्से होंगे वो मिलके? एक दफा दोबारा बोलिए, मुझे थोड़ी सी फर्स्ट पार्ट आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, दोबारा बोलिए। ये जो हमने ऊपर सुपरपोजिशन लगाया है, जो हमने दो कंपोनेंट्स का उसको ब्रेक करके इसको सम ले रहे हैं सर, उसको दोनों कंपोनेंट्स छोटे नहीं होंगे? यानी अभी जो हमने किया वो उसके लेवल से बड़ा था ना, एक बड़ा था एक छोटा था। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो सेकंड केस में हमें ओके, अगर मैं आपका क्वेश्चन सही समझ सका हूं, आप ये कह रहे हैं कि जब मैं सेकंड पार्ट पोर्शन में, लेट मी शो यू वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट। मुझे जो सवाल समझ आया वो ये है कि जब हम RB लगाते हैं ये, तो इसमें लेंथ जो है थोड़ी बढ़ नहीं गई भी L से, ये बात कर रहे हैं? नहीं सर, मैं ये बात कर रहा हूँ, ये जो यानी ये जो इसका सम का पहला पार्ट है ना, जी ये जो हमने फिगर बड़ी क्यों बनाई है? दोनों छोटी नहीं होनी चाहिए थी? यानी मसलन अगर 2 लिखा हुआ है, मैं कहूँ 1 + 1 2 है, तो 1 और 1 छोटे हैं ना, तो इन दोनों को छोटा नहीं होना चाहिए था? नहीं वो डायरेक्शन। अच्छा ओके। अच्छा इसको ऐसे अगर मैं अच्छा आप वेक्टोरियली बात करें, यहाँ पे वेक्टोरियल और स्केलरली का फर्क है। अब मैं बता समझ गया, नाउ आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन जी। ये डायरेक्शन है चेंज इन लेंथ ऑफ बिकॉज ऑफ P, डेल्टा P। ये डायरेक्शन है चेंज इन लेंथ बिकॉज ऑफ B। तो अगर मैं वेक्टोरियली लिखूं ना इसको, वेक्टोरियली, तो मैं लिखूंगा
अगर मेरा एक्स एक्सिस ये है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन डाउनवर्ड है, एस पी माइनस आर बी, नाउ यू अंडरस्टैंड इट। पी की वजह से बढ़ गया, नीचे आया, आर बी की वजह से कम हो गया, ऊपर गया, तो इस एक्चुअली ये माइनस है, इस तरह का देखो, ठीक है, समझ गए। ये एक तरीका है इसको लिखने का। ऑब्वियसली मैंने जो लिखा था वो था, मैंने सिर्फ स्केलर्स की बात, मैंने कहा इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो जाहिर है यहाँ पे जब माइनस मैंने किया था तो मैं बात वही कर रहा हूँ, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। टेक्निकली स्पीकिंग ऐसे लिखना चाहिए, आप सही कह रहे हैं। ये बढ़ा, एक ओरिजिनल लाइन थी, ये डेटम लाइन थी, ये डेटम लाइन थी, इसके बाद डेल्टा पी की वजह से बढ़ गया तो प्लस साइन, डेल्टा आर बी की वजह से कम हुआ माइनस साइन, और जितना बढ़ेगा उतना ही कम होना है तो राइट हैंड साइड जीरो। अगर यहाँ पे कोई गैप होता तो राइट हैंड साइड में गैप आ जाता। तो अब इस केस में देन आई पुट द वैल्यूज, तो फिर ऑटोमेटिकली ये माइनस आ गया हुआ, मैंने वहां माइनस पुट किया था ये देखते हुए कि वो कंप्रेशन है। अब मैं यहाँ कंप्रेशन ऑलरेडी इस इक्वेशन में ही मैंने इनपुट कर दी ना माइनस साइन की वजह से, तो नाउ आई ऑल हैव टू डू इज पुट इन द वैल्यूज, तो या इक्वेशन वही बनेगी। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? जी सर, ठीक है। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलें जी आगे चलते हैं। अब वी डू अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैं लेके आता हूँ थोड़ा सा ये इंटरफेस मेरे लिए, वो आज ये कंप्यूटर मेरा नहीं है बिकॉज ऑफ सम डिटेल्स विच आर नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, तो थोड़े से मामला शुरू में अजीब से लग रहे थे, बट नाउ आई हैव गॉट द हैंग ऑफ इट। आपको मजे की बात बताऊं कि वही माइक्रोसॉफ्ट, वही टैबलेट, वही माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, वही कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट यानी विंडोज, और थिंग्स बिहेव डिफरेंटली, यानी कमाल, कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में, सुभान अल्लाह ही कह सकते हैं, ठीक है। चलें, लेकिन नाउ आई हैव गॉट द हैंग ऑफ इट एज यू कैन सी। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सवाल ज़हन में आ रहा है, अगर आपकी इजाज़त हो। जनाब आप बड़ा सवाल भी कर सकते हैं, मेरी इजाज़त है। अच्छा सर, ये जो ऊपर हमने मेथड 1 किया है, यानी सर उसकी जो पहली क्वेश्चन है बिल्कुल वो इक्विलिब्रियम वाली, उसको लिखते हुए हम वो चीज़ ज़हन में रखेंगे ना कि या तो इनवर्ट फोर्सेस हैं या आउटवर्ड फोर्सेस हैं। यस एग्जैक्टली, है ना। तो वो एफ ए तो बाहर जा रहा था और एफ बी अंदर आ रहा था, तो एक को माइनस और दूसरे को प्लस नहीं होना चाहिए था, दोनों प्लस वहाँ पर। अब वो पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ, वो इक्विलिब्रियम जो आप लिखते हैं ना, तो उस वक्त आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखना चाहिए। इक्विलिब्रियम की जब बात कर रहे हैं ना, जब इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ना, तो उस वक्त हम एज सच ये नहीं बात कर रहे हैं कि वो इक्विलिब्रियम में हम ये बात करते हैं, मैं लेट मी कम बैक टू इट, जो आपने बात की, आप इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, आप इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो मैंने तो इसमें बेसिकली सिर्फ ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन के लिए, मैं अगर आपको टेक्निकली सही करके दिखाऊं तो ऐसे है, मुझे जैसे करना एज अ टीचर तो मुझे ऐसे ही करना चाहिए वैसे, और एज अ स्टूडेंट आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। हम जरा जल्दी में चले जाते हैं, कोई बात नहीं, मुझे ऐसे लिखना चाहिए था समेशन ऑफ फोर्सेस इन द वाई डायरेक्शन, ये मैं इक्वेशन लगा रहा हूँ, और साथ ही मैं लिखूँ एक इशारा आपको बता दूँ कि ये मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, ये मेरी मर्जी है, मैं इसको नेगेटिव भी ले सकता हूँ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त हमें ना एक्चुअली हम पता क्या कर रहे होते हैं, हम स्केलर इक्वेशन लिख रहे हैं। जब स्केलर इक्वेशन लिख रहे होते हैं ना, तो फिर जरूरी नहीं है कि आप अपवर्ड को मतलब वो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो जरूरी नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं अभी बताता हूँ कैसे। अगर ये मैंने कह दिया तो अब जाहिर है आर ए पॉजिटिव है, आर बी पॉजिटिव है, लेकिन फिर पी नेगेटिव है क्योंकि पी डाउनवर्ड है ना। तो इस तरह मैं करता हूँ, तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू पी, ठीक है ना। ये बेसिकली स्केलर इक्वेशन, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन जो आपने यहाँ लिख दी है ना, डायरेक्शन तो यही हो सकती है जो आपने लिखी है, इन डायरेक्शंस के हिसाब से आर ए और आर बी के जो मैग्नीट्यूड्स हैं दे मस्ट बी इक्वल टू पी। इसको अगर मैं ऐसे ना करता, मैं ऐसे कह देता, माइनस जो है वो ये प्लस ये है, लेट्स सी, तो क्या होता, माइनस आर ए माइनस आर बी प्लस पी इज इक्वल टू, ये हो जाता ना फिर, तो तब भी आर ए प्लस आर बी पी होता। मतलब ये फिजिक्स है कि P has to be equal to the magnitude of RA and RB, ठीक है ना। तो बाकी ये जो प्लस और माइनस है ना, ये तो आपकी कन्वेंशन की बात है, आप जो मर्जी कन्वेंशन ले लें, ठीक है, इसमें कोई वो चक्कर नहीं है। हाँ, जब आप इधर आएंगे, ये तो हो गया इक्विलिब्रियम। अब जब आप आएंगे ना इधर चेंज इन लेंथ, तो अब चेंज इन लेंथ या तो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है,
चेंज इन लेंथ कैन बी एक्सटेंशन एंड इट कैन बी कंप्रेशन। तो अब इसमें आपको देखना ये है कि जब मैं यहाँ कट लगाता हूँ तो मेरे पास आर ए और इधर भी आर ए आता है, तो क्या इसमें एक्सटेंशन हो? अब आपने बड़ा ख्याल रखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये याद रखिएगा। इस सवाल को देखते हुए इट इज क्लियर दैट इट इज पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज आउटवर्ड, ये आउटवर्ड आ रही है। इसको अपवर्ड और डाउनवर्ड देखेंगे तो एक्सटेंशन का फैसला अगर आप अपवर्ड और डाउनवर्ड से करेंगे ना, इट विल बी अ मिस्टेक। व्हाई? बिकॉज दिस आर ए इज अपवर्ड, दिस आर ए इज डाउनवर्ड, तो इसमें कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, ये तो इससे तो फैसला ही नहीं हो सकता ना। ये फोर्सेस हमेशा पेयर में होती हैं। जो एक्सटेंशन या कंप्रेशन क्रिएट करती है ना, दे आर ऑलवेज इन अ पेयर। तो जब पेयर होगा तो एक अपवर्ड होगा एक डाउनवर्ड होगा, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड से तो फैसला हो ही नहीं सकता। यू अंडरस्टैंड इट? अब फैसला किससे होगा? जब आप सेक्शन को कट करते हैं तो क्या वो आउट ऑफ द सेक्शन है या इनटू द सेक्शन, इससे फैसला हो सकता है। ये दोनों आउट ऑफ द सेक्शन, अगर आप नोट करें, हैं एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, वैसे ऑपोजिट हैं, बट ये दोनों में एक बात कॉमन है। वो क्या है? दे आर बोथ पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज दे आर आउट ऑफ द सेक्शन। तो ये जो कंपैटिबिलिटी है ना, इधर आपने ख्याल रखना, आउट है, इन है, क्या है। ये इक्विलिब्रियम में तो आपने सिंपली कोई भी एक चीज अज्यूम कर लें एंड यू कैन सॉल्व इट। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? यस सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। ये बड़ी अच्छी बात है, आप क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत जरूरी है करने और समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब ये सवाल आ गया, जो आप में से थोड़ी सी जिनका हाजिरा तेज है उनको याद आ जाएगा फौरन कि ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। डू यू रिमेंबर? जी सर। ये सवाल हमने पहले भी किया था, लेकिन ऊपर एक चीज लिखी हुई है कि नाउ डू इट विद द सुपरपोजिशन मेथड। ठीक है, ये लिखा हुआ है सुपरपोजिशन मेथड से करेंगे। तो अब सुपरपोजिशन मेथड से कर देते हैं। और ये मैंने अभी आपको ऑलमोस्ट सारा सवाल करा दिया है। ऑलमोस्ट सारा का सारा सवाल आपको अभी मैंने करा दिया था, ठीक है। लेकिन ये मैं दोबारा आपको करा देता हूँ अगर आप कहते हैं। ऑल्दो आई विल जस्ट डू इट, maybe I will do it in a slightly curtailed way। 1 मिनट में हो जाएगा। अब ये देखिए, पिछला वाला सवाल आपको याद है क्या था? मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि मैंने अभी आपको ऊपर जो सुपरपोजिशन मेथड का जो एक्सप्लेनेशन दिया तो उसमें आई हैव रिपीटेड एवरीथिंग। ठीक हो गया ना? तो वो अब दोबारा बहुत ज़्यादा रेपिटेशन हो जाएगी। तो आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट बाय सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन से इसको कैसे करेंगे? तो इसको पहले तो आप एक आदत डाल लें कि ऑलवेज राइट सम इक्वेशन जब लिखेंगे ना तो उसका डायग्राम जरूर बनाइए, वरना फिर वो मजा नहीं है उसमें। ठीक है, दिस इज इक्वल टू सुपर, ये भी लग रहा है, फोर्स लग रही है, दिस फोर्स इज 200 किलोमीटर। अब एक डेटम लाइन खींचते हैं क्योंकि हमने वो एक इक्वालिटी एक बनानी है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू नंबर 1, forget about the wall, जाने दें वॉल से आगे। ये हमें पता है इस क्वेश्चन में कि when you apply the force of 200 kN, we know that the displacement at point C is greater than 0.15. If it is not greater than 0.15, फिर तो ये वॉल डी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट टाइम पे। यानी दुनिया के हर सिस्टम के आगे कोई ना कोई वॉल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर बनाऊं, उसको एक्सटेंशन दूं, एज लॉन्ग एज वो जो नेक्स्ट वॉल है उसका टच नहीं कर रहा तो वो वॉल एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना? वरना तो वॉल्स तो मेरे कमरे में भी आगे वॉल है, फिर आगे चलते जाएं तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी आ जाएगी कहीं ना कहीं। सो वॉल्स आर देयर ऑल एवरीवेयर। बट हमारे लिए वॉल कौन सी इंपॉर्टेंट है? जो टच करती है। लेफ्ट वाली तो टच कर रही है, राइट वाली कब टच करेगी? इफ द एक्सटेंशन इन दिस A/C इज ग्रेटर देन 0.15। वो हम देख चुके हैं लास्ट एग्जाम्पल में कि ये करता है, हमें पता है। तो इसका मतलब है कि ये वॉल से आगे जाएगा, राइट। लेकिन अब वॉल ये आ रही थी, वॉल की ये डेटम लाइन, ये उससे आगे चला जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम क्या कहते हैं, इसमें आपने सिर्फ 200 किलोमीटर लगाया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पुट वॉल आई बैक विद अ वेंजेंस। ठीक है ना? एक्चुअली तो वॉल है ना। अब आप फोर्स P नहीं लेंगे, अब P फोर्स नहीं लेंगे। तो यहाँ ये 200 था तो जाहिर है यहाँ भी 200 ही होगा। यहाँ अब आ जाएगा RD, तो यहाँ भी अब RD बैलेंस रखना है ना। तो ये these two are equal to this system, ये हमारा सुपरपोजिशन। और अगर इतनी सी बात है तो बस आगे तो इक्वेशन लिखनी है। तो इसकी इक्वेशन स्लाइटली डिफरेंट होगी।
वो जो आपका ओरिजिनल जो थी ना उससे स्लाइटली डिफरेंट इक्वेशन होगी ऑब्वियसली, बट आंसर सेम होगा क्योंकि इसका अप्रोच डिफरेंट है ना। तो जाहिर है हम स्टार्ट तो वहीं से करेंगे। वो क्या स्टार्ट करेंगे कि भाई जो एक ओरिजिनल इक्वेशन तो आप यहाँ लिख सकते हैं ना कि जो पूरे सिस्टम को अगर आप देखें आर ए इधर लगेगी और आर डी इक्विलिब्रियम इक्वेशन प्लस आर डी इज इक्वल टू 200 किलो न्यूटन। ये तो बात इक्विलिब्रियम की तो इक्वेशन वही है जो पहले भी थी, प्रोवाइडेड it touches the wall at D, which we know it does. तो RA plus RD has to be equal to 200 kilonewton. हाँ, if it does not touch the wall, तो फिर RA is simply equal to 200, ये भी हमें पता है, लेकिन इस केस में तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इस केस में तो RA और RD के कॉम्बिनेशन ने 200 बनना है ना, तो ये एक इक्वेशन है। But what is RD? We don't know. What is RA? We don't know. We need one more equation. That equation will come simply from compatibility, and that compatibility is A slash D is equal to क्या है? Because of F यानी ये 200 प्लस बिकॉज ऑफ रिएक्शन एट D, ठीक हो गया। एंड व्हाट इज दिस A स्लैश D? दिस इज 0.15, दिस इज द गैप। अगर ये गैप 0 होता तो फिर 0 होता, इस गैप है तो ये है। तो अब व्हाट इज दिस एंड दिस, इसका तो ख्याल रखना, ठीक है। तो बड़ा आसान है, ठीक है, बहुत आसान काम है। अभी कर लेते हैं इसको। लेट मी तो मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। मैं आप चाहता हूँ कि आपको वो भी नजर आए ऊपर का डायग्राम, राइट। सो व्हाट वी डू इज राइट इट डाउन अगेन। ये अच्छा, अब ये 0.15 है। अब व्हाट इज डेल्टा एफ क्या है? डेल्टा बिकॉज ऑफ एफ क्या है? ये याद रखिएगा कि ये वाला रीजन है दैट इज अफेक्टेड बाय एफ ओनली। ये तो फ्री लोडर है, दिस रीजन इज फ्री लोडर, इट हैज, ये फोर्स पेयर के दरमियान नहीं है, यू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट बिटवीन फोर्स पेयर्स। फोर्स पेयर्स के दरमियान जो चीज होगी खिंचाई उसमें होगी, ये पूरा का पूरा एज अ फ्री बॉडी आगे चला जाएगा, ठीक है। इसका ये है नथिंग टू डू विद दिस, ठीक है। तो PL ओवर ए 200 हमें पता है 10⁻³ ये किलो न्यूटन से कन्वर्ट किया है, इनटू लेंथ इसकी 600, ये आपको ऊपर नजर आ रही है, ओवर ए एरिया इसका π/4 इंटू 50 स्क्वायर π/4 d स्क्वायर। अच्छा, और फिर इसका मटेरियल है 200 इंटू 10⁻⁴ ये इसका गीगा पास्कल को मेगा पास्कल में बोल, ठीक है। अच्छा, ये होगी चीज। अब आगे चलें। व्हाट अबाउट दिस सेकंड, ये कंप्रेशन जो RD की वजह से आएगी, एक तो वो ये कि वो माइनस साइन के साथ आएगी, बिकॉज वो भी बात, वही अभी जो बहस हुई थी कि ये स्केलर, ये हम कह रहे हैं दो क्वांटिटीज हैं जिनसे वो बनता है, लेकिन अगर देखा जाए इन क्वांटिटीज की डायरेक्शन फर्क है। तो या तो आप स्केलर इक्वेशन में यहाँ प्लस लिखते हैं, या अगर वेक्टर में लिखना चाहते हो तो इसको पहले को प्लस दूसरे को माइनस लिखें, तो फिर आपको वी डोंट नीड अ माइनस साइन हियर, बट इन एनी केस द माइनस साइन विल कम हियर, ठीक हो गया। अच्छा, माइनस, अब इसमें आप नोट करें बोथ दिस रीजन इज अफेक्टेड बाय इट एंड दिस रीजन इज अफेक्टेड बाय। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि तो पेयर, फोर्स पेयर के दरमियान जितना कुछ भी है तो इसमें दो इसमें बेसिकली कंपोनेंट्स बनेंगे। नंबर 1 RT PL ओवर ए, याद रखें RT इंटू L, फर्स्ट दिस लेंथ क्योंकि इसकी लेंथ जो है 600 है और इसका एरिया फर्क है ना, π/4 इंटू 50 स्क्वायर इंटू 200 इंटू 10⁻⁴ इसका ये चीज होगी, प्लस RD। अब इसकी बात करें, ये भी 600 है, बट इसका जो एरिया है ना वो π/4 इंटू 25 स्क्वायर इंटू 200 इंटू 10, ये तो बाकी कॉमन है। या ये आसान है ना, कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। सिर्फ आपने ये देखा कि पहले वाले पार्ट में ओनली वन पार्ट ऑफ द बॉडी वाज बीइंग एक्सटेंडेड बिकॉज द फोर्सेस वर, a pair of forces were there and anything which was in between them was being expanded. In the second part, because we are talking about the two forces at the end, so everything in the body is included. तो यानी दो सेगमेंट बन गए। अब ये दो प्लस साइन क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि एरिया फर्क हो जाता है, आपको दो समेशन, ये समेशन ली लिया। अगर ये एक ही बार होता तो आपको लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि RD इज द सेम थ्रू आउट, ठीक है। तो अगर ये करेंगे, इसको सॉल्व करें तो व्हाट डू यू गेट 20 किलो न्यूटन। वही आप चेक कीजिएगा, RA
180 kilo. Actually, it could be something like 179.9 something, or yeah, ये what is 20.01 type. Whatever it is, doesn't matter. किलोमीटर में convert करें, ये चीज आ जाएगी. Any question? आसान है ना? वही same thing but in a different manner. Any question before we move on to the next one? एक और question करते हैं. आसान है ना? Yes. Okay, great. ये देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार आ रहा है, बहुत मजेदार क्वेश्चन, यानी इसको लुत्फ आएगा करके. बहुत मजेदार सवाल. चलिए इसका थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें सो दैट यू कैन रीड इट. ये बहुत अंडरस्टैंडिंग में आपकी इजाफा करेगा. जब बोथ थिंग्स आर कंप्रेसिबल तो फिर क्या होता है जिंदगी में. आमतौर पर आप हमें होता है ना कि हम जो फोर्स लेते हैं हम कहते हैं यार ये चीज तो फोर्स तो फिक्स है, तो हम सिर्फ बॉडी को देखते हैं कंप्रेसिबल है. इस केस में वी आर गोइंग टू सी बोथ थिंग्स एज कंप्रेसिबल, और रियल वर्ल्ड तो ऐसे ही होती है, ठीक है ना. तो इट इज वेरी इजी टू मतलब वेरी यूजफुल टू सी थिंग्स इन दिस लाइट, ठीक है. अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि मैं हर क्वेश्चन जो है वो सुपर पोजिशन से ही कराऊं, ठीक है. अगला क्वेश्चन इसको हम जरा देखते हैं क्या करना है, विल सी. एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज नहीं होगा फ्राइडे को हम शुरू में करेंगे, वो मैं फिर दोनों तरीकों से करा दूंगा. यानी आई वांट टू आल्सो गिव यू अ फ्लेवर कि हर क्वेश्चन दोनों तरीकों से भी हो सकता है, बट आई आल्सो डोंट वांट कि भाई ये कोई इस तरह की कैटेगरी यार ये वाले क्वेश्चन इससे किया करो, ये नहीं. यू फील डेवलप अ फील ऑफ दिस थिंग. सो आफ्टर सम टाइम यू फील कि अच्छा यार ये इस तरह बेहतर रहेगा, ठीक है ना. तो ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हो दोनों तरीकों से हर सवाल जाता है, ठीक है. ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है. इट्स ओनली अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस. नाउ लिसन टू द क्वेश्चन. Initially, the A36 bolt shank fits snugly against the rigid caps E and F. ये देखें ना, E और F rigid caps हैं, इनके बीच एक बोल्ट लगा हुआ है. नट आपने स्नग क्या होता है, आप उसको हाथ से घुमाएं और जहां वो बस घूमना बंद हो जाए वो स्नग फिट है, उसमें अभी कोई टेंशन या कंप्रेशन क्रिएट नहीं हुई. इसके बाद अगर आप पकड़ के रेंच लेके शुरू हो जाएंगे तो फिर टेंशन कंप्रेशन आएगी, ठीक है ना. तो अभी फिलहाल स्नग फिट हो गया. नाउ इफ द थ्रेड ऑफ द बोल्ट शैंक हैज अ लीड ऑफ 1 millimeter, lead 1 millimeter, the nut is tightened 3/4 of a turn. 3/4 of a turn. लीड क्या होती है जी? लीड होता है 1 turn of nut में जितना एक्सियल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय नट होता है उसको लीड कहते हैं, ठीक है ना. एक नट को मैं घुमाऊं ना अगर पूरा टर्न, तो वो एक्सियली आगे जाएगा ना. कितना एक्सियली आगे जाता है वो लीड होती है. इसका मतलब है कि जब उसको हम पूरा टर्न देते हैं ना तो ये 1 मिलीमीटर जाता है. तो हमने तो 3/4 ऑफ अ टर्न दिया ना, पूरा भी नहीं दिया. तो इसका मतलब है कि नट मूवमेंट क्या होगी, एक्सियल, बिल्कुल 3/4 into 1 यानी कि 0.75 मिलीमीटर. ये बात तो क्लियर, ये आपने किया तो ये अब नट जो है ना 0.75 मिलीमीटर आगे जाएगा, ठीक है. अच्छा, अब आगे चलें. इफ द थ्रेड ऑफ द बोल्ट, अच्छा ये तो हो गया. अब डिटरमिन द एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बोल्ट शैंक. ये बोल्ट का शैंक है, दिस इज बोल्ट शैंक. एंड द स्लीव, ये स्लीव है, ठीक हो. ये एल्यूमिनियम स्टील स्लीव है, एल्यूमिनियम स्लीव, और ये स्टील बोल्ट. अब आप मुझे बताइए, खुद सोचें जरा कि जब मैं नट को टाइट करूंगा एल्यूमिनियम में क्या होगा, कंप्रेशन होगी, टेंशन होगी? कंप्रेशन. राइट, बिल्कुल गुड. अच्छा, जब मैं इसको टर्न करूंगा तो स्टील शैंक में क्या होगा, टेंशन होगी, कंप्रेशन होगी? टेंशन. ये बात तो क्लियर हो गई ना आपको? ओके, ग्रेट. नाउ लेट्स राइट द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम. यहां से काटते हैं.
ये आपने जो बात मुझे बताई है, मैं कोई इससे आगे नहीं जाऊंगा, जितना आपने बता दिया है उसी से मैं एक इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करता हूँ। टेंशन इन बोल्ट, कंप्रेशन इन स्लीव। स्लीव स्लीव सी से कब से हो गया, एस से होता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है रोजों में, ठीक है। चलिए अच्छा, अब ये ठीक हो गया, और तो कोई फोर्स नहीं है इधर में बेशक एफ, एक्चुअली मुझे क्या कहना चाहिए, ये दोनों मिला के दिस वन एंड दिस वन मिला के एफ है, ठीक है ना, मतलब वो तो एक फिजिक्स की बात है ना। अच्छा अब देखिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो सिंपल है, वो क्या है, वही वाली बात, मैं अब मैं आई विल बी वेरी केयरफुल, एफ वाई इज इक्वल टू 0 और दिस इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है ना, ये पॉजिटिव है अपवर्ड, तो फिर मैं लिखूंगा एफ एस माइनस एफ बी इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया ना। दूसरे लफ्जों में और तो कोई फोर्स है नहीं, देयर इज नो अदर फोर्स, देखिए इसमें कोई अप्लाइड फोर्स एस एस को पी टाइप फोर्स नहीं है, द ओनली फोर्स जनरेटेड इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द नट, तो एफ एस इज इक्वल टू एफ बी, ये आपके पास एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है ना, इक्विलिब्रियम इक्वेशन एक ही है, हमें ये पता है कि व्हाटएवर द फोर्स इज इन द बोल्ट इज आल्सो द फोर्स इन द स्लीव, ये पता है, ये नहीं पता अनफॉर्चुनेटली कि वो बोल्ट फोर्स है कितनी। मतलब मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास और मेरे दोस्त के पास बराबर पैसे हैं, ये एक इक्वेशन है, ये ना बताऊं कि हैं कितने, तो अब इसके कितने आंसर हैं, इनफाइनाइट आंसर्स आर देयर, सो ना आई नीड वन मोर इक्वेशन, मैं ये भी तो पता चले ना कि हैं कितने, ठीक है ना, सो आई नीड वन मोर इक्वेशन इज नॉट देयर एज फार एज इक्विलिब्रियम इज कंसर्न्ड, वी नीड कंपैटिबिलिटी। अब कंपैटिबिलिटी के बारे में जरा सोचिए कि हमें थोड़ी देर के लिए बात मान लें, थोड़ी देर के लिए मान लें, बस जस्ट एक छोटा सा पॉइंट है एंड देन विल फिनिश दिस। अगर मैं आपसे कहूं कि ये स्लीव बिल्कुल रिजिड है, स्लीव रिजिड नहीं है, हमें पता है स्लीव में कंप्रेशन होती है, स्लीव बिल्कुल रिजिड है, इसमें कोई चेंज ऑफ लेंथ नहीं होता, तो जब हम नट को घुमाएंगे तो ये 0.75 मिलीमीटर जो है, नट कितना एक्सटेंड होगा, 0.75 मिलीमीटर एक्सटेंड हो जाएगा ना, क्योंकि नट एक्सटेंड, जो बोल्ट है वो एक्सटेंडेबल है, जबकि स्लीव हम मान रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि इट इज रिजिड, तो सारी की सारी मोशन जो है वो तो फिर सारी की सारी जो डिफ्लेक्शन है वो तो आनी है बोल्ट के शैंक में, तो 0.75 मिलीमीटर वुड हैव बीन इन दैट केस द एक्सटेंशन ऑफ बोल्ट। अच्छा अब जरा उल्टा सोचिए, बोल्ट रिजिड है, बोल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हम नट चलाते हैं तो बोल्ट को कोई लेंथ में फर्क नहीं पड़ता, वो रिजिड है, बट स्लीव सारी की सारी कंप्रेस होती है, तो स्लीव कितनी कंप्रेस होगी इन दिस केस, बोल्ट 0.75, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, यानी अगर इन दोनों में से कोई एक मेंबर रिजिड होता तो ये सारा का सारा जो नट का ट्रेवल है दैट वुड हैव बीन अकाउंटेड फॉर बाय द डिफॉर्मेशन इन द नॉन रिजिड मेंबर, यानी एक केस में स्लीव एक केस में बोल्ट, ये तो उस दोनों सिचुएशन में होता है जो कि आइडियल सिचुएशन है, रियल वर्ल्ड में दोनों एक्सटेंडेबल हैं, एक एक्सटेंड होता है एक कंप्रेस होता है। अब मुझे बताइए कि चेंज इन लेंथ इन बोल्ट प्लस चेंज इन लेंथ इन स्लीव ये कितना होना चाहिए इस केस में जब दोनों एक्सटेंडेबल हैं या कंप्रेसिबल हैं, 0.75 भी नहीं होना चाहिए, यस ठीक है ना, ये कंपैटिबिलिटी ये है, इनमें से एक भी रिजिड होता तो जो नॉन रिजिड मेंबर है वो सारा का सारा 0.75 को अकाउंट करता, दोनों चूंकि रिजिड नहीं है, एक में एक्सटेंशन होनी है एक में कंप्रेशन होनी है, लेकिन ये दोनों मिलाकर आपको मिलते हैं वो 0.75 बनाते हैं, 0.75 क्यों, क्योंकि नेट ने ट्रैवल किया है, तो ये आपकी कंपैटिबिलिटी, और अगर ये कंपैटिबिलिटी है तो जस्ट राइट इन द वैल्यूज एफ बोल्ट इनटू लेंथ ऑफ बोल्ट, ठीक है ना, लेंथ ऑफ बोल्ट और लेंथ ऑफ स्लीव तो सेम ही है, तो वी कैन राइट इट एज एल, वी डोंट नीड टू डिस्टिंग्विश इट, ठीक है। अच्छा फिर ए ऑफ बोल्ट और ई ऑफ बोल्ट ये हमें जाहिर है करना पड़ेगा क्योंकि ई डिफरेंट है ना, मटेरियल डिफरेंट है। अच्छा प्लस फोर्स इन द स्लीव इनटू लेंथ ऑफ स्लीव, मैंने इसको एल ही लिख दिया है क्योंकि वो एक ही है, ए ऑफ स्लीव इनटू ई ऑफ स्लीव, इनको अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि ये 0.75, और अगर ये ऐसे है तो ऑल आई नीड टू डू नाउ इज पुट इन द वैल्यूज
अच्छा, ये मैं अभी एक सवाल जो आपके दिमागों में बड़ा उछल रहा होगा, आई कम टू इट, मैं जरा पहले इसको मुका दूं। एक मुझे पता है एक सवाल तंग करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। लेंथ 500 है दोनों की, वो कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। एक अच्छा नहीं 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 वो रिजिड, सॉरी 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 सॉरी, टेक माय वर्ड बैक। ये एल बोल्ट लेना पड़ेगा, एल स्लीव लेनी पड़ेगी। क्यों? अब ये देखिए स्लीव 450, ये तो पोर्शन रिजिड था, इसको तो कोई फर्क, इसको ये पोर्शन रिजिड है, इनको नहीं फर्क पड़ता। तो बोल्ट इज लॉन्गर, तो ये 500 है और यहाँ पे एफ एस इंटू 450। आई टेक माई वर्ड बैक, बट यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अगर ये स्लीव ना होती तो फिर इक्वल होते, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये रिजिड पार्ट ना होता। अच्छा, ए बी क्या होगा, पाई बाय 4 इंटू 60, ये डायमीटर गिवन है, और 200 इंटू 10⁻³ ये स्टील का आपको पता होता है। इसका एरिया क्या है, पाई बाय 4 इंटू ये 250 गिवन है, और फिर ये 15 गिवन है, ठीक है ना। तो आपको जाहिर है इतना तो मतलब 7वीं क्लास के बाद ये तो मेरा ख्याल आप जानते हैं कि कैसे इसका एरिया, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया कैसे करते हैं। और इसका जो एल्यूमिनियम का है ये आपको गिवन होगा, या आप हैंडबुक वगैरह से देख सकते हैं। आमतौर पे मैंने आपको बताया था कि 200 उसका है तो 75 इसका है, ऑल्दो 73 हो सकता है। जैसे स्टील का 195, 196, 205 इस रेंज में होता है, तो इसका भी फ्रॉम 73 टू 77, 78 तक हो सकता है, बट 75 इज द एवरेज। सब कुछ भूल जाए, 75 लगा लें। तीसरी चीज, कॉपर बेस्ड राइस उनका 100 जेन में रखिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, असल इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हाट आर यू डूइंग, योर कॉन्सेप्ट, राइट। अच्छा, ये दिस होल थिंग, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0.75, ये आपके पास दूसरी एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन आ गई, ठीक है। और इसको जब आप करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा एफ एस एंड एफ बी दोनों सेम है, वो तो हम पहले ही पता है कि जो एफ एस निकल आएगा वही एफ बी होगा, ठीक है ना। तो जब आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, यू से सी दैट 520.76 किलो न्यूटन इज द फोर्स। तो उसके बाद तो सिर्फ स्ट्रेस रह जाता है। स्ट्रेस इन स्लीव क्या है, फोर्स इन स्लीव ओवर एरिया ऑफ स्लीव, ठीक है। इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो 47 एमपी आ जाएगा। स्ट्रेस इन बोल्ट क्या है, फोर्स इन बोल्ट ओवर एरिया ऑफ बोल्ट, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 184 एमपी आ जाएगा। ये मेरी तरफ से क्वेश्चन खत्म है। अब 1-2 मिनट में ऊपर हो चुका हूँ, बट आई विल जस्ट टेक 1 more मिनट। थोड़ा सा आपका मुझे पता है कि एक चीज तंग कर रही है, व्हाई इज देयर अ प्लस हियर। ये तो माइनस नहीं है, एक चीज प्लस है एक माइनस है। ये वही बहस है जो मैं पहले भी 2 दफा कर चुका हूँ। अगर ये स्केलर इक्वेशन लिखी हुई है, स्केलर इक्वेशन का मतलब है कि ये दोनों की एक्सटेंशन, एक यानी दोनों का जो चेंज ऑफ लेंथ है ना, एक्सटेंशन नहीं कहना चाहिए, दोनों का चेंज ऑफ लेंथ है ना, एक का कम है एक का ज्यादा है, बट मतलब एक का बढ़ता है एक का कम होता है, वो एक अलग बात है। बट दोनों की जो चेंज ऑफ लेंथ है वो ऐड होकर 0.75 बनता है, तो फिर तो आप यहाँ प्लस ही यूज करेंगे ना। अगर आप इसको साइन वाइज यूज करना चाहते हैं ना, इसको वेक्टर टाइप, तो फिर आपको वही वाली बात जो मैंने आपको पहले कही थी कि बोल्ट की अगर बात करें तो बोल्ट में अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन है लेट्स से, तो ये इस तरह है, और जो स्लीव है ना, स्लीव वो उल्टी डायरेक्शन में है, ठीक है, ठीक हो गया ना। तो अगर इस तरह आप करेंगे तो जाहिर है फिर आप जब ये करेंगे तो माइनस साइन यहाँ लगाएंगे, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, जाहिर है ये प्लस और ये माइनस होगा तो ये लगाएंगे। लेकिन जब आप उसके बाद एफ एस की वैल्यूज पुट करेंगे, आपको ये भी पता है कि वो एफ एस जो है, वो जो डेल्टा एस है, वो तो माइनस में है ना, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। तो इन एनी केस, इन आइदर वे यू विल गेट द सेम थिंग, बट डोंट बॉदर अबाउट वेक्टर्स इन दिस इन दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। मेरे ख्याल में ये स्केलर, बस आपको पता है क्वांटिटी दोनों की मिला के 0.75 बनती है, तो बस उसमें वैल्यूज पुट करें, तो डोंट वरी अबाउट द साइन। अल्टीमेटली आप जिस भी तरीके से करेंगे एक ही बात है, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इसका एक आधा सवाल हम और करेंगे अगली क्लास में जस्ट, और अगला क्वेश्चन मैं आई प्रॉमिस यू, इसको तो मैंने सिर्फ एक ही तरीके से कराया ना, ये तो जरा क्वेश्चन इस तरह का है नहीं सुपरपोजिशन टाइप का, बट नेक्स्ट टाइम देयर विल बी अ क्वेश्चन, ये इस तरह से सुपरपोजिशन का कुत्तों को भी नहीं बनता। नेक्स्ट टाइम एक क्वेश्चन ऐसा और लेके आएंगे जिसको हम दोनों तरीकों से करेंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस, समझ आ गया ये? यस सर। सर जब ये दोनों डिफॉर्मेबल होंगे तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं ना कि इन दोनों की कंप्रेशन मिला के 0.75 होगी, इंडिविजुअली 0.75 नहीं होगी उस वक्त। हाँ, कंप्रेशन ना वर्ड यूज करें, इन दोनों की डिफॉर्मेशन मिला के 0.75 होगी। यस यस, एक ही कंप्रेशन और एक ही एक्सटेंशन है। यस, यू आर एग्जैक्टली राइट। इनमें से अगर एक भी रिजिड होता
तो मसला ही हल था, उसको तो कोई फर्क ना पड़ता। फिर ये 0.75 सारा का सारा वो जो डिफॉर्मेबल मेंबर है वो बेयर करता, वो चेंज होता लेंथ में। इस केस में चूंकि दोनों हैं तो अब दोनों थोड़ा थोड़ा होते हैं, ये नहीं हमें पता कितना क्या होता है, वो जाहिर है इक्वेशन हमें मैथमेटिक्स बताएगी, बट ये हमें पता है कि दोनों को मिला के 0.75 होते हैं। ओके, थैंक यू। ठीक, चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। मैं ये जरा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं।